یہ حکومت جو ہے یہ بہت بڑے معاشی بحران کی طرف دھکیل رہی ہے ملک کو. China is the most time-tested friend of Pakistan. Saudi Arabia is one of the most reliable, trustworthy friend of Pakistan, and they no more expect that we go there with a begging bowl. مگر یہی دوست اب ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم وہاں پر جو ہے ایک بیگنگ باؤل کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ کشکول اٹھا کر ان کے پاس جاتے رہیں. ہماری ایگو تو ہرٹ ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، دنیا میں ہم ذلیل تو ہو رہے ہیں، اپنے خطے میں ہو رہے ہیں، جو ازلی اور ابدی دشمن ہے اس کے سامنے ہو رہے ہیں. اس کی حالت دیکھیں اور ہماری حالت دیکھیں، جن کو ہم نے جس کو شکست دینی تھی، جس کے لال قلعے پہ ہم نے ہلالی جھنڈا لہرانا تھا، ٹھیک ہے، جس سے ہم نے کشمیر چھیننا تھا، تو سارا کچھ اسے مار کھا کے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا جتنے ہمارے دریا روک سکتا تھا، جتنا پانی روک سکتا تھا، جتنا آج تک ممکن ہے کسی ان دریاؤں کا پانی روکنا، اس سب کی اس کو اجازت مل گئی. ٹھیک ہے، اس میں اس نے 3 دریا ہمارے پورے روک لیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کوئی لیڈر، ہماری کوئی مذہبی جماعتوں کے لیڈر یا ہمارے سیاستدان اٹھ کے قوم کو ایک دن کہیں کہ بھائی کل دھرنا ہوگا، واگا بارڈر پہ ہوگا اور ادھر ہم جا کر شور کریں گے، واویلا کریں گے. ورلڈ بینک نے تو بول دیا کہ اس کے اندر کوئی کلاز نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم آپ کو پتا ہے پچھلے 4 دنوں میں ترکی، ایران، آذربائیجان، تاجکستان تھے. اب وہ چائنا، سعودی عربیہ اور باقی جو گلف ممالک ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین اور عمان. اور وہ وہاں پہ جا کے بتائیں گے کہ بھائی صاحب بھارت کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اور جا کے بتائیں گے کہ روز ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، روز ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں دھول چٹا دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے. اگر ہم ایٹمی قوت ہونے کے باوجود اس سے ڈر رہے ہیں یا اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو یار یہ افسوس کا بخاوا ہے. ارے بھائی پانی بند کر دیا ہے انہوں نے، کشمیر ریڈ لائن ہے یا نہیں ہے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے اب بھی جو ہے وہ ڈرل کر رہے ہیں جنگ کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ نے کیا گین کیا. فولادی فیصلہ تھا انڈیا کا، یہ ایک فولادی فیصلہ تھا یہ حملہ کرنا. مائی گاڈ. دوسری جانب ایک بڑا اتحاد جو ہے وہ بن چکا، جس میں 6 آئرن بردر جو ہے وہ سامنے آ گئے بن کے، افغانستان بھی اس میں ساتھ شامل ہو گیا. افغانستان اپنی ایئر بیس اگر بگرم کی بات کریں تو وہ انڈیا کو دینے جا رہے ہیں، جو کہ وکھن کوریڈور چائنا کے قریب نظر آتی ہے. توبہ 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 توبہ. مجھے پورے انٹرنیشنل آبزرورز کا بھی یہی سوال ہے کہ اگر انڈیا ہمارا پانی بند کر دیتا ہے، کیونکہ سرحد اس نے بند کیا ہوا اور سنتاس معاہدہ جو ہے اس کو دوبارہ انٹیکٹ نہیں کرتا، تو ہمارے پاس پھر آپشن یہی بچے گا کہ ہم ان کے ڈیمز اڑا دیں. تو کیا یہ آپشن ہے ہمارے پاس؟ اور پاکستان کے اندر جو آتنکی موجود ہیں وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے یا بھارت اتنا فولادی فیصلہ کرے گا. ڈیم تو جب 3 بٹن دبانے تو 3 ڈیم اڑ جائیں گے، ڈیم تو اڑا سکتے ہیں. جبکہ پاکستان کی 10 ایئر بیسز پہ بھارت نے حملے کیے، یہ سارے حملے جہازوں سے کیے گئے، ایئر ٹو سرفیس میزائل استعمال کیے گئے، پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ استعمال کیے گئے، لیکن پاکستان اس کے بعد بھارت کا کوئی بھی جہاز گرانے میں کامیاب نہیں ہوا. مائی گاڈ. پاکستان کچھ بھی نہیں کر سک رہا. پہلے کہا گیا تھا اس کو فل سکیل وار سمجھا جائے گا، یہ کہا گیا تھا آپ کے سامنے اگر ایسا ہوا تو، اور فل سکیل وار آپ کے سامنے جناب انہوں نے اپنا جو کام کرنا تھا کر لیا. بھارت تو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، ہم نے گڈ ول میں یہ معاہدہ کیا تھا، گڈ ول ختم ہو گئی، سو اب کوئی سوال نہیں پیدا. صاحب جو آپ نے باتیں بتائی ہیں یہ کوئی آج کی پلاننگ یا کل کی پلاننگ تو نہیں ہے. بھارت تو جس طریقے سے اپنے ڈیمز بنا رہا ہے، یا یہ پلاننگ بھی وہ پہلے سے کر رہا ہے، اس نے ڈیموں پہ بہت ساروں پہ کام بھی شروع کر لیا ہے. کشن گنگا ایک اس کی اگزامپل ہے کہ بھئی اس پہ پاکستان نے ہلکا پھلکا شور مچایا، ہوا کچھ بھی نہیں، ہمیں کچھ بھی اس میں سے نہیں ملا. فاضل صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو رپورٹ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے، جسپا ڈیم کا بیسیکلی اس میں ذکر ہے کہ یہ اس کے ذریعے بھارت جو ہے دریائے چناب کو راوی اور بیاس کے ساتھ ملانے جا رہا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے، اور اس ڈیم کو مکمل ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان پہ، یہ ذرا بتائیے. دیکھیے، ایک میری رپورٹ تھی، میں یون کی طرف سے گیا تھا، ایک ان کا تھا اسی میں یعنی ساتھ کی جو اسٹیٹ ہے ہماچل پردیش کے اتراکھنڈ، وہاں پہ مولانا ہائیڈرل پروجیکٹ بنا تھا. آپ یقین کریں وہ 2 سال میں 2 ایئرز، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، ایک پرائیویٹ پارٹی نے. یہ تو کام اس کا جون 2022 سے شروع ہے. سال لگتا ہے، 1.5 سال لگتا ہے، 2 سال لگتا ہے، یہ اب ہمیں نہیں پتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ان کے. ایک دوسرا دریائے چناب جو کہ ہماچل پردیش سے شروع ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی 2 ٹریبیوٹری ہیں،
39 ने, अगर आप काश ऐसा हो कि हम आपको दिखा सकें उनके इतने इतने बड़े डॉक्यूमेंट, फिर टेंडर हो गए, काम शुरू है, 39 डैम बन रहे हैं। यानी पहली बात ये कि हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर ही पानी नहीं आ पाएगा, फिर जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान आता है तो 60% वाटर तो वहीं से ही वाइप हो जाएगा, वहीं पे उसको रिसर्कुलेट करेंगे, रिसाइकल करेंगे और दाएं बाएं कर देंगे। और देखिए तो हमारा क्या हाल होगा फिर? ये सारा अगर वहां पर ही हो जाएगा, सारा पानी वहां पर कंज्यूम हो जाएगा, तो हमारी क्या स्टैंडिंग होगी फिर? हमारा क्या मंजरनामा होगा? आबी और जरई मंजरनामा पाकिस्तान का क्या होगा? अगर ऑन द राइट नोट बात इस तरह है कि हम इंशाल्लाह कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में मिलियन मार्क तो कर सकते हैं ना, ये तो करेंगी। हमारी कई मजहबी जमातें इस काम में बड़ी मास्टर हैं, वो कर सकती, वो करेंगी। लेकिन यहाँ उनके लिए भी रिमाइंडर, उन जमातों के लिए भी, एक बांग्लादेश में जब गांजी रिवर को डाइवर्ट कर रहे थे, और ये बात है 1965 की, बाहर से कुछ अर्सा पहले, वहां एक मौलाना बाशानी थे, 10 मिलियन बांग्लादेशियों का मार्च लेके दरिया गंगा के बॉर्डर पे पहुंच गए थे। है कोई माइकल आल पाकिस्तान में, क्या फजलमान हो, क्या दूसरे हाफिज नईम आए ना वागा के ऊपर, चलिए सबसे पहले मैं हूँ कफन बांध के मार्च करेंगे ये वाले। तो अच्छा, तो फिर अब नहीं, अब इस सारी सिचुएशन में फिर अब वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब आपकी क्या रिकमेंडेशन है? क्योंकि अभी पाकिस्तान की हुकूमत ने एक वफ्द तैयार किया है, वो जाएगा भारत को काउंटर करने के लिए दुनिया भर में। अब उस वफ्द को क्या इशू रेज करना चाहिए? आपसे मैं पूछूं, आप हमारे बच्चों के बराबर ये बताइए, क्या किसी ने आपसे पूछा है कि इस प्रोग्राम में ये पूछना है और फिर मैं जाके इनको बताऊंगा या आप जाके बताएंगी? अगर आप इनको बता सकती हैं, मुझे पूछते, मैं इनको ब्रीफ कर देता हूँ। आपका क्या ख्याल है कि ये जितने जो आइंस्टाइन है, जो अरिस्टोटल है, ये मेरी आपकी बात सुन के जाएंगे, इसके लिए इंतजार कर रहे हैं? नहीं, लेकिन अब्बासी साहब, आइडिया तो मिल सकता है ना उनको। जाहिर है ये प्रोग्राम चलेगा, लोग देखेंगे, हो सकता है कोई उन 4, 5, 7, 8 में से भी देख ले, या उनका कोई रिश्तेदार देख ले, उनको कोई क्लिप भेज दे, कोई फॉरवर्ड कर दे। हमारी बड़ी बड़ी गलतफहमी है, मेरी भी 60 साल हो गए हैं कि काश एक टेलीविजन प्रोग्राम के ऊपर कोई बंदा, जासूस साहब बैठे हुए हैं, एहसन इकबाल द ग्रेट मैन, वो नोट्स लेके बैठे हैं कि यार इस बंदे से बात सुनी, कोई काम किया है तो फौरन बात करते हैं। या आपको कहा कि जी ऐसे करें, पूरे पाकिस्तान में सर्वे कंडक्ट करें, हर बंदे से पूछे कोई काम की बात हो तो हमें बता दें। आप यकीन करें, ऐसे है कि अगले 2 प्रोग्रामों में बताएं, मैकेंजी आपको एडवाइस की जरूरत है, कुछ चीज की जरूरत है, बताएं। ये ऐसे नहीं होता। इक़्तिदार पर काबज़ होने के 3 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद भी ये लोग ये हमें बता रहे हैं कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, सऊदी अरब हमारा बड़ा ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, तुर्की, कतर और यूएई भी हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। मगर यही दोस्त अब हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम वहाँ पर जो है एक बैगिंग बाउल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कि एक कशकोल उठाकर उनके पास जाते रहें। और ये सूरत हाल जिस मुल्क में हो जाए, वहाँ पर कभी भी आइन और कानून की हुक्मरानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप जितनी मर्जी रंग रोगन करके जो मर्जी झूठ और प्रोपेगेंडा फैला लें, हकीकत यही होती है कि आप अंदर ही अंदर कैंसर ज़दा होते हैं, आप ख़त्म हो रहे होते हैं। सिर्फ मीडिया के एक हिस्से पर कब्जा करके लोगों को ये तासुर दे रहे होते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। ये बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का आगे चलना किसी भी तौर पर मुमकिन हमें नज़र नहीं आता जब तक कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती। अपने मुंह से ये लोग इतराफ़ कर रहे हैं कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है और जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ गामज़न हैं। हालांकि ये तासुर दिया जाता है, किसी एक आधी बात को या किसी एक आधे फिगर को बुनियाद बनाकर इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जाती है कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मामला मुकम्मल तबाही की तरफ हैं। इस वक्त एक मरतबा फिर से जो हम हज़ारों अरब का बजट देते हैं डिफेंस का, आपने देख लिया कि जब भारत ने हमला किया, हम उसके जवाब में एक मिसाइल भी भारत के मेन लैंड पे फायर नहीं कर सके। तो फिर हम ये करेंगे कि भाई हम अपनी अब हमारी ईगो तो हर्ट हो रही है ना, ठीक है ना, दुनिया में हम जलील तो हो रहे हैं, अपने हिते में हो रहे हैं, जो अजली और अब्दी दुश्मन है उसके सामने हो रहे हैं। उसकी हालत देखें और हमारी हालत देखें, जिसको शिकस्त देनी थी, जिसके लाल किले पे हमने हलाली झंडा लहराना था, ठीक है, जिससे हमने कश्मीर छीनना था, तो सारा कुछ उसे मार खा के अब हम बैठे हुए हैं।
तो इसमें इसको जो हमारा जो ईगो हर्ट होती है, अब उसको हम ट्रांसलेट यूं कर देते हैं कि भाई ऐसे करें कि यार ये मसाइल तो हर जगह होते हैं, ये तो और वो फिर इस तरह की जो है ना मेरा फरारियत जो है, एस्केप जो है, वो फिर हमने अपना ली है। तो ये एक सैड सिचुएशन है पाकिस्तानियों ने की, और मेरा ख्याल है कि हम इसका मजाक उड़ाने की बजाय हमारे जो रूलिंग एलीट है, जो हमारे मैनेजर्स हैं हमारे स्टेट के, उनको गौर करना चाहिए कि भाई उन्होंने इस मुल्क के अवाम को और अपनी जो इंसानी जो दौलत है, रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो पाकिस्तान के हैं, उनको किस हद तक इन्होंने बर्बाद कर दिया है, उन्होंने किस हद तक उनको खोखला कर दिया है। खैर इसके ऊपर उस वक्त समझ आएगी जब हम बहुत कुछ खो चुके होंगे। एक और छोटा सा कमेंट इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में एक और बड़ा अहम बयान था, वो डिस्कस करना जरूरी था। वो बार बार एक बात कह रहे हैं और मुझे उस बात से तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अरे इस बात से क्या मतलब है? ये लोग क्यों कहते हैं? मतलब होता क्या है कि जिस तरह आप अमूमन देखते होंगे कि कोई जुल्म का वाक़या हो जाता है और जो कोई वजीर होता है मुतलका, वो वहां पे खड़ा होकर बयान दे रहा होता है जी बड़ा जुल्म हुआ है। यार हद होगी भाई, तुम हुकूमत में हो, तुम्हारा काम है कि ये जुल्म ना हो, और अगर जुल्म हुआ है तो तुम आवाम को सिर्फ ये बताओगे, ये नहीं कहोगे एक्शन लिया जाएगा। ऑब्वियसली एक्शन तो आइन और कानून की बात अगर है तो वो तो लिया ही जाना है, लेकिन बात ये तुम तो ये बताओगे कि ये हुआ था, ये हो गया, जो भी इसके रीजन से वो आप बताएं कौम को, और हमने ये काम कर दिया है, ये वाला एक्शन ले लिया है। ये काम होता है हुकूमतों का। ये बैठ के बार बार हमें कहीं चले जा रहे हैं कि जी पानी जो है हथियार इस्तेमाल नहीं। अरे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है इंडिया भाई, आंखें खोलो। आपके DGISPR तो कह रहे थे कि ये लार्ज स्केल वॉर जो है उसका ऐलान होगा अगर भारत ने पानी बंद कर दिया। भाईजान कर देता है पानी बंद। इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन अबायंस है, और आप बजाय उनको जवाब देने के, बजाय उनको टेक ऑन करने के, बजाय वो दरवाजे जिनके जरिए पानी बंद किया गया उन डोर्स को उड़ाने के, आप ये कह रहे हैं हम अक़वाम मुत्तहिदा मिशन भेजेंगे, हम फलां काम करेंगे, हम फलां काम करेंगे। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि फैक्ट्स रिपोर्ट होने चाहिए, सच रिपोर्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को हकीकत का पता हो। दोस्तों, जब से भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया गया है और जब से भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोका गया है, तब से ही कभी पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से और कभी पाकिस्तानी फौज की तरफ से कोई ना कोई धमकी भारत को दी जा रही है कि जिस डैम से भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा, हम उन डैम्स को ही मिसाइल मारकर उड़ा देंगे, या फिर जिन नदियों से पाकिस्तान का पानी बहकर आता है और उनको अगर रोका गया तो इन नदियों में भारतीयों का खून बहता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पाकिस्तानियों की ये गीदड़ भभकियां अब इनके किसी काम नहीं आ रही हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोकने का पूरी तरह से इंतज़ाम कर लिया गया है। जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पर पाकिस्तान के ही लोग यह बता रहे हैं कि भारत की तरफ से आज से नहीं बल्कि कई सालों से ही इस पानी को डाइवर्ट करने के लिए इंतज़ाम किए जा रहे थे, और भारत के पास इतनी कैपेसिटी है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ अपने लोगों को दिलासा देने के लिए, सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बातें कर रही है कि भारत के पास पाकिस्तान में जा रहा पानी रोकने के लिए कैपेसिटी ही मौजूद नहीं है। लेकिन इस समय जिस तरह से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है, उसको देखकर तो साफ दिखाई दे रहा है कि भारत के पास वो कैपेसिटी मौजूद है। सिर्फ इंसानियत के चलते इससे पहले भारत की तरफ से इसको यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तानियों की हरकतों के चलते, पाकिस्तानियों के इरादों को देखते हुए भारत को यह कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, और भारतीय गवर्नमेंट ने अब यह कड़ा कदम उठा लिया है। और पाकिस्तानी जो भारत से जा रहे पानी को यूज़ करके फसलें उगाते थे, उनको एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते थे, अब वो पैसा कमाना तो दूर की बात है, अब पाकिस्तानी अपने खाने के लिए अनाज भी नहीं उगा पाएंगे। और रही बात पाकिस्तानियों की गीदड़ भभकियों की कि ये लोग हमारे डैम्स उड़ा देंगे, तो भारत की तरफ से अब बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में फेंक दी गई है कि अगर पाकिस्तानी फौज चाहे तो इस सिचुएशन को और एस्केलेट कर सकती है। पाकिस्तानी फौज अगर इस लड़ाई को बढ़ाना चाहती है तो ठीक है, पाकिस्तान का स्वागत है। अगर पाकिस्तानी फौज की तरफ से भारत के डैम्स पर या फिर भारत की किसी भी इमारत पर कोई मिसाइल मारी जाती है
तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा कितना बुरा भुगतना पड़ेगा ये पाकिस्तानी फौज ऑलरेडी देख चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को एक साथ उड़ाकर भारत ने पाकिस्तान के सामने वो मिसाल कायम करके दिखा दी है। और रही बात, जैसे कि इस वीडियो में पाकिस्तान के एक एनालिस्ट द्वारा एक ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तानियों को कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से बंद करता है तो पाकिस्तानियों को लाखों की संख्या में वाघा बॉर्डर की तरफ मार्च करना चाहिए और उनको वाघा बॉर्डर पर आकर धरना देना चाहिए, भारत के सामने प्रोटेस्ट करना चाहिए। यानी पाकिस्तानियों के लिए पानी खुलवाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि पाकिस्तानी भारत के सामने आकर अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाएं कि किसी तरह से थोड़ा बहुत पानी हमारे लिए छोड़ दो, तब जाकर हो सकता है कि पाकिस्तानियों को थोड़ा बहुत पानी मिल जाए। अब यह पाकिस्तानियों का कहना है, अब यह पाकिस्तानी ही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि भारत को पाकिस्तानियों पर थोड़ी बहुत दया आ जाए तो भारतीय सरकार पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत पानी छोड़ दे, वरना भारत के पास अब वो कैपेसिटी भी है और भारत के पास वो ताकत भी है कि भारत पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से बंद कर सकता है और दुनिया भारत को कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि भारत को खुद पानी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। भारत को अपने देशवासियों के लिए पानी की ज़रूरत है, लेकिन जब भारत उस पानी की एक एक बूंद को खुद के लिए यूज़ कर लेगा, अपने लोगों के लिए यूज़ कर लेगा, तो दुनिया का कोई हक नहीं बनता कि वो लोग भारत का पानी छीन कर पाकिस्तानियों को दे। तो यहाँ पर पाकिस्तानियों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जंग करके पाकिस्तानी भारत से एक बूंद भी पानी नहीं ले सकते और ना ही पाकिस्तानी फ़ौज के पास ऐसी कोई कैपेसिटी है कि वो लोग भारत को कोई बड़ा नुकसान पहुँचा पाए। ये चीज़ हम भारतीयों को भी पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज की गंदी नज़र हमारे डैम्स पर है, पाकिस्तानी हमारे डैम्स को टारगेट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसलिए हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हमारे डैम्स को सुरक्षित रखने के लिए 24 घंटे तत्पर है। पाकिस्तानी फ़ौज ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो इसका खामियाजा पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।